Hello dear students, today I am going to teach you another topic from the administration of injections. This topic is very important because you have to keep these things in your mind when you are administering any of the medications. So these things that you have to keep in mind, this is very important, and this is about the principles that are involved in administration of medications, especially injections. Okay, so let us see what all principles are there that you have to keep in your mind, and when you are practicing your administration of medication or injection to a patient, you have to maintain these principles. You have to follow these principles so that you don't make any mistake while giving any injection. So let's see what are those principles. The first principle over here says the knowledge of the anatomy and physiology of the body is essential for the safe administration of the injection. So before going on with your nursing practice and all, first the most important subject that you study is the anatomy and physiology, है ना? क्यों पढ़ते हैं वो? Why is it very important? So that you know the parts of the body nicely and you don't make any mistake, or you don't damage, or you don't cause any problem in the patient's body. Okay, so for that you need to know better and best about the complete anatomy and physiology of the patient's body. So you should have a good knowledge about the anatomy and physiology of the body. And why is it important? So that you don't injure the patient, you don't cause any kind of injury in where you are not supposed to cause the injury. For example, if you're supposed to give an injection into the muscles, and if you don't know the anatomy and physiology and you just think that everywhere there are muscles in the body, right? So I can give the injection anywhere, but accidentally what you can do, you can damage the nerves of the patient, you can damage the blood vessels of the patient. If you damage the blood vessels, the bleeding will not stop. Okay, and if you damage the nerve, then the sensation may be lost. Even the patient may go into paralysis. Okay, so this is there that you should have a thorough knowledge of the anatomy and physiology of the body. So here there are certain points within this about the knowledge of anatomy and physiology. So first of all, the first thing is that you with this knowledge you will avoid injury to the underlying tissues. So whatever tissues are there below the skin, you cannot see it, right? But when you know the anatomy and physiology, then you will be able to understand that what all things are there under these tissues. Okay, या फिर उस स्किन के अंदर कौन से अंडरलाइंग टिश्यूज हैं वो आपको पता चलेगा. So in order to avoid that, you have to follow this, that you should know about the anatomy and physiology of the patient. Now there are several blood vessels and nerves just below the skin. Now this is why जो भी आप साइड सेलेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कुछ साइड्स हैं जहां पर आप इंजेक्शन दोगे. अगर आप इंट्राडर्मल दे रहे हो, सो देयर आर सर्टेन साइड्स, जैसे कि इनर एस्पेक्ट ऑफ दिस फोरआर्म है, ठीक है, ये वाला जो ये एरिया जो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हेयर भी नहीं होता, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी नहीं होंगे, तो ऐसा एरिया हमें चूज करना होता है जहाँ पे ब्लड वेसल ना हो, कोई नर्व ना हो. ठीक है, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं इंट्राडर्मल. देन यहाँ दूसरी साइड है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर चेस्ट, सॉरी अपर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर चेस्ट. जो एंटीरियर चेस्ट है उसका अपर एस्पेक्ट, तो वहां पर आपको ये इस तरह की स्किन मिलेगी, तो वहां पर आप इंट्राडर्मल दे सकते हो. ठीक है, क्योंकि इंट्राडर्मल कहाँ पर देना है, स्किन में देना है डायरेक्टली. ओके, डीप नहीं जाना है. तो ऐसे एरिया में जहां पर ब्लड वेसल ना हो, नर्व की इंजरी का भी कोई टेंशन ना हो, हेयर ना हो, ठीक है, ऐसे एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए. सो यू कैन गो फॉर दिस इनर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर आर्म. ठीक है, ये लोअर आर्म है, ये पूरा आर्म है. ओके, ये लोअर आर्म है, लोअर आर्म का इनर एस्पेक्ट आप ले सकते हो. देन दूसरे साइड कौन सा हो गया, अपर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर चेस्ट, देन अपर एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर चेस्ट. ठीक है, पीछे में भी तो चेस्ट है ना, यहाँ पर आपके लंग्स तो पूरे में एक्सपैंड हो रहे हैं, पूरे ये चेस्ट कैविटी है ना. सो पोस्टीरियर एस्पेक्ट और एंटीरियर एस्पेक्ट का जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर आप इंट्राडर्मल दे सकते हो, और इनर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर फोरआर्म, लोअर आर्म. ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर आप इंट्राडर्मल दे सकते हो. अगर आप इसके अलावा कहीं और दोगे तो यू में डैमेज द ब्लड वेसल्स और यू में डैमेज द नर्व टिश्यू, नर्व सेल्स. ठीक है, नर्व्स भी आप वहां पर इंजर कर सकते हो.
अगर आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे रहे हो उसके लिए भी कुछ साइट्स हैं, ठीक है, तो वहीं पर आपको देना है. फॉर एग्जाम्पल जो एब्डोमेन है उसकी जो अम्बिलिकस है उसकी दोनों साइड में आप दे सकते हो, ठीक है. या फिर जो आपका बैक है वहां पर स्कैपुला के जस्ट नीचे वाला जो एरिया है वहां पर आप दे सकते हो, ठीक है. ये आउटर एस्पेक्ट जो है आर्म का यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है. तो ये एरियाज है जहां पर आपको सबक्यूटेनियस टिश्यूज मिल जाएंगे. मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस कहाँ कहाँ देते हैं. ओके, सो आई टेल यू अबाउट दैट लेटर व्हेन वी गो विद द साइट्स इन द डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस इंजेक्शंस. So in that I will teach you the different sites that are used for giving the subcutaneous injections, intradermal injections and IM also. ठीक है. So this here I am just discussing in short. दूसरी चीज क्या है, अगर आप IM इंजेक्शन दे रहे हो तो वहां पर भी कुछ साइट्स हैं जहां पर आपको देना है. एक आपके पास डेल्टॉइड मसल होगी, आपके पास और वेंट्रोग्लूटल मसल होगी, डोर्सोग्लूटल मसल होगी, ठीक है, और आपके पास वास्कुलस लैटरालिस होगी, ठीक है. तो ये 4 मसल्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं IM इंजेक्शन देने के लिए. मैं आपको वो साइट अच्छे से बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा कहाँ पर देते हैं, ठीक है. और ये जो साइट्स हैं वो इस तरह से हम विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी उसके अकॉर्डिंग ही ये 4 साइट्स परफेक्ट चूज की गई है IM देने के लिए, ठीक है. अगर आप इन साइट्स के अलावा यूज करते हो या आपको ये साइट्स लोकेट करना सही से नहीं आता, then you can injure the nerves of the patient. Okay, so this is why you should give these injections in where it is supposed to be given. ठीक है. Now अगर आप इंट्रावीनस इंजेक्शंस दे रहे हो, ठीक है, तो आपको इंट्रावीनस इंजेक्शंस वेन में देना है ना. वेन्स आप उन्हीं वेन्स में दोगे जो आप जिन्हें आप पैल्पेट कर पाओ, जिन्हें आप ग्रैब कर पाओ, जिनको आप दे सको, जिसको यूज कर जहां से आप इंजेक्शन दे सको. सो इंट्रावीनस इंजेक्शन जो है wherever you are giving you have to make sure that you are able to see that particular vein. Those veins should be visible and palpable. You should be able to palpate the veins and then you can give the injection in that particular vein. So if you're not able to access that vein, if you're not able to palpate that vein and you're not able to view that vein also properly, then you cannot go for giving the injection immediately, just like that. Okay, so you should be able to see it nicely and you should be able to palpate it. So there are certain areas, certain veins are there that are usually visible and usually palpable. So I'll tell you about that. I will show you the sites, exactly what all sites are there for the intravenous injections. So this is about how you can prevent the injury into different underlying tissues under the skin. Next है to minimize the pain. So next principle here we have, if you have the knowledge of anatomy and physiology, definitely you will also you can minimize the pain to the maximum. Okay, so how you can do that? See, the more you are nearer to the surface of the skin, the more will be the pain. ठीक है, जितना ऊपर ऊपर आपका इंजेक्शन की नीडल जाएगी, ऊपर जितनी रहेगी उतना ज्यादा पेनफुल जाएगा, मतलब जितना डीप जाएगा उतना पेन कम होगा. Okay, so the nearer to the surface a needle is placed and the fluid is introduced. So whenever you are giving any injection and it is just like in the skin area or it is in the subcutaneous tissue, it will be little more painful. But if you go take it into a very deeper tissue like in the muscles, then it will not be much pain. ठीक है, एक ही पॉइंट है. नेक्स्ट है, जब आप फ्लूइड को किसी भी टिश्यू में कहीं पे भी आप इंजेक्ट करोगे तो वहां पर आपको पेन होगा डेफिनेटली. व्हेनेवर द मेडिसिन इज गोइंग इनटू अ बॉडी, डेफिनेटली इट विल बी पेनफुल. ठीक है, सो हाउ यू कैन प्रिवेंट इट, दैट पर्टिकुलर साइट जो भी आप यूज कर रहे हो, अगर आप इंट्राडर्मल यूज कर रहे हो वो बहुत लिमिटेड एरिया है ना, तो वहां पर आप कम अमाउंट मेडिकेशन का दोगे. ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, वहां पर आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ मेडिकेशन दे सकते हो. मसल्स हैं वो वहां पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड डर्मिस. देयर इज इनफ एडिक्वेट ब्लड सप्लाई इन द मसल एरिया. ओके, सो यू कैन गिव अ लार्जर अमाउंट ऑफ medication in the muscles. Next, if we go to the veins, it is itself the blood is there, right? So you can give a larger amount of medication or fluids into the veins. Okay, so this is how you have to see कि आपको अपने प्रिंसिपल से याद रखना है कि किस तरह से आप पेन को मिनिमम रख सकते हो. सो अमाउंट जितना है मेडिकेशन का उसके अकॉर्डिंग आपको रूट या साइट डिसाइड करना है. ओके, देन
ऐसे एरियाज जहाँ पर नर्व्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर उतना ही ज़्यादा पेन होगा, राइट. सो द मोर द सेंसेशंस द नर्व्स आर एक्सपोज्ड अप टू अ पर्टिकुलर एरिया, द मोर विल बी द सेंसेशन ऑफ pain. So you have to see for some areas where there are not enough nerves, so that the patient will not have much pain. So for example, the outer aspect of the limbs are chosen instead of the medial or inner aspect of the limbs. So limbs की बात करें अगर हम, चाहे वो हाथ हो या पैर हो, उनके जो आउटर एस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपके नर्व्स इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने ये इनर एस्पेक्ट या मिडिल एस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि वहां पर आपको ज्यादा सेंसेशन होगा. वाई? बिकॉज वहां पर नर्व्स ज्यादा हैं और आउटर एस्पेक्ट में इतने ज्यादा नर्व्स नहीं है, तो आप आउटर एस्पेक्ट को यूज कर सकते हो इंजेक्शन देने के लिए. Then another thing that I've already told you while I was explaining to you about needles. Needles जो है जितनी शार्प होंगी और जितना उसमें कोई रफनेस नहीं होगा, एकदम शार्प होगी, स्मूथ होंगी, तो पेन नहीं होगा. ओके, सो यू हैव टू सी कि आपकी जो नीडल है वो शार्प है, स्मूथ है, कोई रफनेस नहीं है, उसमें कोई हुक नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि टिश्यू ज्यादा डैमेज हो. तो जितनी पतली नीडल होगी, जितनी शार्प वो होगी, टिश्यू उतना ज्यादा कम डैमेज होगा और पेन भी उतना ही कम होगा. This is about pain. Next है to aid in absorption of the drug. Now, knowledge of this anatomy and physiology will also help you to make the drug more absorbable from the particular site that you're giving the injection. अगर आप मसल्स में इंजेक्शन दोगे तो वहां पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, सो वहां से इजीली जो ड्रग है वो अब्जॉर्ब हो सकता है. ओके, सबक्यूटेनियस टिश्यू में उतनी ब्लड सप्लाई नहीं है तो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होगा. ओके, इंट्राडर्मल में भी उतना टाइम, उसमें टाइम लगेगा. ठीक है, सो अगर आप मसल्स में देते हो सो इट विल हैव अ फास्टर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो जितना डीप आप दोगे मेडिकेशन उतना ज्यादा फास्टर आपका एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ही कम आपका पेन भी होगा, जो हमने भी पढ़ा था. अदर देन दैट, अगर आप मसाज करो कोई पर्टिकुलर एरिया में या फिर वार्मथ दे सकते हो, हॉट कंप्रेशन दे सकते हो, कुछ अगर गर्म लाइक यू नो हॉट वाटर बॉटल यूज कर सकते हो. अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, वार्मथ दे रहे हो कुछ भी, तो उससे भी आपका वहां से मेडिकेशन इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है. ओके, देन अनदर थिंग इज दिस दैट आपकी जो मेडिकेशन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि मेडिकेशन कितने रेट पर एब्जॉर्ब होगी. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मेडिकेशन जो है वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक. ठीक है, आइसोटोनिक मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का सेम है, 50% 50% यू कैन से. ठीक है, दिस इज आइसोटोनिक. हाइपोटोनिक मतलब कि मतलब ये ज्यादा डाइल्यूट वाला होगा. ठीक है, हाइपोटोनिक मतलब है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो सॉल्यूट जो है वो कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, मतलब मेडिसिन कम होगी, पानी ज्यादा होगा, डाइल्यूट ज्यादा होगा. ठीक है, ये हाइपोटोनिक है. हाइपरटोनिक मतलब ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो ज्यादा अमाउंट में है और सॉल्वेंट कम है. सो इस तरह से ये जो सोल्यूशन है बनाए, वी मेक सच काइंड ऑफ सोल्यूशंस एंड यू हैव टू सी कि जो कॉन्सेंट्रेशन आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन कैसा होगा मेडिकेशन का. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप दे रहे हो आइसोटोनिक सोल्यूशन टू अ पेशेंट, इट विल हेल्प टू लाइक उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस तरह का होगा कि वो ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखे, है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो मेंटेन करेगा. ओके, सो इस तरह अगर आइसोटोनिक होगा तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है, और हाइपोटोनिक अगर होगा तो वो भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि वहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा है. ओके, अगर आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां से उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट कम होगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एब्जॉर्प्शन रेट आपको अगर बढ़ाना है तो कैसे आप क्या कर सकते हो. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, 3 चीजों में हेल्प करेगी. फर्स्ट आपके पास है अवॉइडिंग इंजरी, सेकेंड है मिनिमाइजिंग द पेन, एंड थर्ड वी हैव एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. अब नेक्स्ट आपके पास सेकेंड पॉइंट है कि इफ केयरलेसली गिवन इंजेक्शंस आर मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन टू द बॉडी. नाउ इफ यू आर गिविंग अ मेडिकेशन और कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हो, अगर आप उसको वो प्रोसीजर केयरफुली नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली यू विल एंड अप इनटू कॉजिंग इन्फेक्शन टू द पेशेंट. Okay, how? Because if you're not being careful, then you can
have like introduction of the microorganisms into the patient's body. So you have to be very careful while you're dealing with the injections, the medications, the syringes, needles, everything. So how you can do that, how you can minimize or you can avoid causing infections to the patients, is that you have to make sure that your syringes and your needles are sterile. Okay, so अगर आपके पास एक पैकेट में है, it is written कि वो sterile होगी, okay, that is okay. But अगर वो पैकेट ओपन है और रखा हुआ है ऐसे ही, so will you use it? You cannot use it. Okay, अगर आपके पास अगर वो पूरा सील्ड पैकेट है, ओपन ही नहीं हुआ है, तब आप उसको कंसिडर कर सकते हो कि वो स्टेराइल है. बट आप नहीं जानते कि वो कब से ओपन है. हाँ, द सिरिंज मे बी यूज्ड और नॉट. अगर कोई आपको बता भी रहा है बट आपने देखा है कि आपके सामने वो नहीं खुला है पर वो पहले से खुला हुआ था, सो यू कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर सिरिंज और नीडल बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि वो स्टेराइल है या नहीं है. सो दैट विल हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन. नेक्स्ट है, जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हो वो भी स्टेराइल होना चाहिए. सो जो भी आप मेडिसिन यूज कर रहे हो वो भी स्टेराइल होना चाहिए. उसके लिए आप क्या करोगे कि आप जब वाटरफॉल इंजेक्शन यूज कर रहे हो या नॉर्मल सलाइन यूज कर रहे हो, वो आपका एकदम स्टेराइल होना चाहिए जब आप यूज कर रहे हो, पहले से ओपन नहीं होना चाहिए. ओके, सो यू हैव टू मेंटेन दैट स्टेरिलिटी ऑल थ्रू आउट द प्रोसीजर. नेक्स्ट है, जो आपके पास आप फ्लूइड यूज कर रहे हो, आईवी फ्लूइड यूज कर रहे हो या वाटरफॉल इंजेक्शन यूज कर रहे हो, उसमें पायरोजेंस नहीं होने चाहिए. पायरोजेंस क्या थे जो हमने पहले पढ़ा था? पायरोजेंस आर दो सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया टू कॉज फीवर इन अ पेशेंट्स बॉडी. ठीक है, तो वो पायरोजेंस अगर वाटर के अंदर होंगे डेफिनेटली उससे फीवर होगा पेशेंट को. That is to be avoided. Then next क्या है? Entry of bacteria growing on the skin is prevented. कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? स्किन पर जो बैक्टीरिया है उसको एंटर करने से हम उस एरिया को इंजेक्शन देने से पहले क्लीन करेंगे. ठीक है, सो स्पिरिट स्वैब से या कोई भी अल्कोहलिक बेस्ड स्वैब से आप उस एरिया को क्लीन करोगे तभी वहां पर आप इंजेक्शन दोगे, सो दैट यहाँ का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट ना करें. हमेशा प्रोसीजर से पहले और आफ्टर द प्रोसीजर यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. देन जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को आपको एसेप्टिक टेक्निक के अंदर ही यूज करना है. एसेप्टिक टेक्निक, स्टेरिलिटी, सब कुछ मेंटेन करना है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन. देन थर्ड पॉइंट है, ड्रग्स दैट चेंज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड विल एंडेंजर द लाइफ ऑफ द क्लाइंट इफ नॉट यूज्ड कॉशियसली. नाउ देयर आर दीज ड्रग्स जिसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो हमारे ब्लड के पीएच को अफेक्ट करेगा. ठीक है, मे बी सम कंडीशंस में बी स्पेशली फॉर अफेक्टिंग द पीएच. अगर हमारा ऐसा इंटेंशन में नहीं है बट वो अफेक्ट कर सकती है. नाउ देयर आर सर्टेन कंटेंट्स इन द ब्लड जो हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करती है नॉर्मल में. नाउ व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड? 7.35 to 7.45. Okay, that is a normal blood pH. Okay, एवरेज लेंगे तो 7.4 वी कैन से दैट. एग्जैक्ट अगर है तो 7.4 हमारे ब्लड का पीएच नॉर्मल होता है. ओके, अगर इससे ज्यादा होगा तो वो बेसिक हो जाता है ब्लड. ओके, अगर इससे कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा. तो अगर 7.8 से ज्यादा है तो वो बहुत डेंजरस है बॉडी के लिए, और अगर 7 से कम है ओके तो भी वो बहुत ज्यादा डेंजरस है बॉडी के लिए. नाउ when you are using some medications जिसमें कि सोडियम है या पोटेशियम है, तब आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना है. ओके, अगर आपके पास आइसोटोनिक सोल्यूशन है तब आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट वेरी मच. ठीक है, बट आपके पास अगर सोडियम पोटेशियम रॉ है या कॉन्सेंट्रेटेड है तब आपको बहुत ध्यान रखना है और बहुत ही स्लो उसको एडमिनिस्टर करना है. बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही ध्यान से धीमे धीमे एडमिनिस्टर करना है और पेशेंट को ऑब्जर्व करने की जरूरत है. पीएच को मॉनिटर करने की जरूरत है कि पेशेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. ओके, सो बॉडी में क्या, वो ब्लड में वो क्या कंटेंट होता है? देयर इज दिस सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डाइसोडियम फॉस्फेट. ये जो दो सब्सटेंसेस हैं, दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड. नाउ व्हेन यू इंट्रोड्यूस सोडियम एंड पोटेशियम इनटू द बॉडी थ्रू योर मेडिकेशंस, सो उससे यहाँ पर ये चीज इंक्रीज होगी. ठीक है, तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो उससे पीएच ब्लड का डिस्टर्ब होता है. सो जब भी आपको ऐसे मेडिकेशंस यूज कर रहे हो जिसमें सोडियम और पोटेशियम है तो आपको बहुत ही कॉशियसली यूज करना है. देन आप जब मेडिसिन ऐसे यूज करो जिसका कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक नहीं है जो, ठीक है,
तब भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द pH ऑफ द ब्लड. देन फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है, एनी अनफेमिलियर सिचुएशन प्रोड्यूसेस एंजाइटी. सो यू नो दैट जब भी कोई भी आप प्रोसीजर यूज शुरू करने वाले होते हो, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर पेशेंट नोज एवरीथिंग अबाउट इट. आपका पेशेंट एंग्शियस ना हो, कोऑपरेटिव हो. उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सारे प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करने होते हैं करने से पहले. सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर, इट्स बेनिफिट्स, its drawbacks, or what it may have the consequences. ठीक है, everything you have to explain to the patient. The patient deserves to know, and they have the right to know everything about that particular patient, and they also have the right to choose to whether get that procedure done or to deny it. ठीक है, वो मना भी कर सकते हैं, वो हाँ भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है, उनके पास वो राइट है. सो अब आप जब प्रोसीजर करने जा रहे हो, मेडिसिन देने जाओगे, इंजेक्शन लेकर जाओगे, पेशेंट को डेफिनेटली एंजाइटी होगी. सो हाउ कैन यू अवॉइड दैट? सबसे पहले तो ये कि आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर. ठीक है, कि ज्यादा पेन नहीं होगा, जरा सा दर्द होगा, चींटी जैसे काटती है वैसे दर्द होगा. ठीक है, तो मतलब इस तरह से कि आप पेशेंट को कॉन्फिडेंस गेन कर सको. सो जब तक आपका पेशेंट आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, तब तक वो इंजेक्शन नहीं लगवाएगा. डेफिनेटली नॉट. मैं तो नहीं लगवाऊंगी आपसे. ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर पेशेंट इज कंफर्टेबल विद यू. दे शुड हैव ट्रस्ट इन यू and confidence in you, so that you are also confident enough while giving the injection. अगर पेशेंट आपसे डर रहा है, आप भी उससे ज्यादा डबल डरोगे कि अरे कहीं सच में मैं उसको हर्ट ना कर दूं. ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है. स्पेशली जो पेशेंट आप फर्स्ट टाइम इंजेक्शन लगवा रहे हो, उनके साथ तो आपको बहुत ही ज्यादा समझाने की जरूरत है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि फियर और एंजाइटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पेन होगा. तो इसलिए पेशेंट को काम करने की जरूरत है. काम डाउन करो एंड मेक उनको समझाओ कि जितना आप ज्यादा डरोगे उतना ज्यादा आपको पेन होगा. मे बी बिकॉज ऑफ एंजाइटी द पेशेंट में जस्ट शिवर कर रहे या शेक कर दे, तो आप जब इंजेक्शन लगा रहे हो आपकी नीडल हिल सकती है. ठीक है, सो इट कैन डैमेज इवन मोर टिश्यू जितना नॉर्मली इंजेक्शन से होता. ठीक है, तो उससे ज्यादा पेन होगा, उससे ज्यादा वो एरिया भी डैमेज हो जाएगा, वहां पर और ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट द पेशेंट इज काम. देन दूसरी चीज, सिरिंजेस या नीडल्स देख करके पेशेंट्स डर जाते हैं, स्पेशली बच्चे. ठीक है, इफ यू हैव अ पीडियाट्रिक पेशेंट, दे विल बी स्कैर्ड बाय सीइंग द सिरिंजेस एंड नीडल्स. सो मेक श्योर कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पेशेंट को दिखाओ नहीं, पर ये नहीं है कि आप उनसे बात छुपाओगे कि मैं आपको इंजेक्शन के बारे में उन्हें नहीं बताऊं. ऐसा नहीं करना है. दे डिजर्व टू नो, दे हैव द राइट टू डिसाइड वेदर दे टेक द इंजेक्शन और नॉट. ठीक है, अगर ज्यादा डर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप उन्हें समझा सकते हो, कैसे उनको काम डाउन करो और उनको कोऑपरेट करवाओ कि इंजेक्शन वो लगवा लें. ओके, सो दिस इज लाइक आप कैसे ये समझा सकते हो कि आप उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाओ कि ज्यादा दर्द नहीं होगा, मेरे हाथ से इतना दर्द नहीं होता, इस तरह से. ठीक है, बट यू हैव टू बी श्योर कि आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको भी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए कि एक्चुअली वो आप में बाद में भी ट्रस्ट कर सके. ये नहीं कि आपने तो बोल दिया पर उसको पेन हुआ तो नेक्स्ट टाइम से वो नहीं लगवाएंगे आपसे. ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि आपको हर चीज ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट है पेन कैसे प्रिवेंट कर सकते हो. लाइक आप इंजेक्शन जब देने जा रहे हो, उनको बता भी दिया आपने कि इंजेक्शन देने जा रहे हो, उनके माइंड में चल भी रहा होगा कि दर्द तो होगा, थोड़ा तो होगा, है ना, वट एवर इट इज. बट हाउ यू कैन प्रिवेंट, किसी ना किसी बात में उन्हें उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है, सो अगर आप डिस्ट्रैक्ट कर पाओगे स्ट्रांगली तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू प्रिवेंट दैट पेन. पेशेंट को वो पेन फील भी नहीं होगा, इंजेक्शन लग जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा. सो जब भी आप इंजेक्शन दे रहे हो, कोई भी प्रोसीजर करते हो, तो पेशेंट से बात करते रहना है ताकि उनका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहे. मेडिकेशन पर या जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान ना रहे. ठीक है, फैमिली के बारे में बात करो, या इफ दे हैव किड्स उनके बारे में बात करो, उनकी अच्छी अच्छी बातें या उनकी कोई अच्छी मेमोरीज. ठीक है, उससे रिलेटेड अगर बात करोगे तो डेफिनेटली दे विल नॉट हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑन द इंजेक्शन और द प्रोसीजर दैट यू आर डूइंग. दे विल बी डिस्ट्रैक्टेड. ओके, एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द पेशेंट गेट्स प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइवेसी अगर नहीं दोगे तो डेफिनेटली द पेशेंट विल बी एंग्शियस. ठीक है, देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है, once a drug is injected it is irretrievable. Antidote may be available for particular medications, but the best antidote is prevention. अगर आपने एक बार मेडिसिन दे दी, आप उसको वापस नहीं निकाल सकते. ओके, अगर आपने ओरली कोई टैबलेट दी है, वॉमिटिंग अगर हो गई, वॉमिट इंड्यूस करके वो निकल भी सकता है. बट इंजेक्शन अगर आपने दे दिया तो वो आप वापस तो नहीं ले सकते ना.
राइट। सो बेस्ट जो हो सकता है कुछ मेडिकेशंस के लिए एंटीडोट भी मिल जाए, सम मेडिकेशंस, नॉट ऑल, ठीक है, पर सबके लिए नहीं मिलेंगे ना, राइट। सो एंटीडोट जो बेस्ट है वो क्या है, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हो, आप अच्छे से देखो प्रिस्क्रिप्शन चार्ट, डॉक्टर ने क्या ड्रग प्रिस्क्राइब की है, इसी पेशेंट के लिए की है या नहीं की है, राइट्स ऑफ मेडिकेशन को ध्यान में रखते हैं, वो सारे राइट्स को ध्यान रखना है, 3 चेक्स जो हैं उन्हें ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सब चीज़ों को फॉलो करना है, एक्सपायरी डेट चेक करनी है, ठीक है, एक्सपायरी डेट चेक करनी है, पेशेंट आइडेंटिफाई करना है अच्छी तरह से, मेडिकेशन अच्छे से देखना है, सब कुछ अच्छे से देखना है, उसकी mg उसकी डोज कितनी है, पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन कितना मिला है, पेशेंट आपके पास सही है या नहीं है। सो ऑल दिस यू हैव टू वेरीफाई एंड देन ओनली यू गिव द मेडिकेशन, ठीक है। जब अगर आप ये सब करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गिव द करेक्ट मेडिकेशन और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जब भी मेडिकेशन दे रहे हो तो ये भी देखो कि आपके पास लाइट एडिक्वेट होनी चाहिए, सो दैट आप अच्छे से पढ़ सको कि वो मेडिकेशन आप सही दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है। एंड जो भी मेडिसिन आप देते हो उसके बारे में आपके पास नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं बिना नॉलेज के आप दे रहे हो, ठीक है। जब अगर आपके पास आप उस मेडिसिन के बारे में नहीं जानते, यू कैन नॉट गिव दैट मेडिकेशन, ओके। कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं गलत मेडिकेशन देने की वजह से, यू नो दैट एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन, पायरोजेनिक रिएक्शन हो सकता है। देन इन चीजों को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, एलर्जिक रिएक्शन कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, टेस्ट डोज दे करके, पायरोजेनिक रिएक्शन कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, एसेप्टिक टेक्निक यूज करके, ओके। एंड देन अगर आप फ्लो ऑफ फ्लूइड को ज्यादा फास्ट ना करो, अगर जो प्रिस्क्रिप्शन है जैसे 4 घंटे में ही जाना है एक बॉटल को, तो उसी रेट पर 4 घंटे में जाना है, आप ये ना कोशिश करो कि 1 घंटे के अंदर वो बॉटल खत्म हो जाए। सो इससे आप क्या प्रिवेंट कर सकते हो, सर्कुलेटरी ओवरलोड, ठीक है। देन रोटेशन करते रहो साइड की, जिससे कि एक ही जगह का टिश्यू डैमेज ना हो, ओके। देन एक्सीडेंटल इंट्रावास्कुलर इंजेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, बाय चेकिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द सिरिंज बिफोर द ड्रग इज इंजेक्टेड। सो जब भी आप मेडिकेशन जब आप IM देते हो, हमेशा क्या करना है, आपने सिरिंज लगाई, एस्पिरेट करोगे, मतलब वापस पुल करोगे, मेडिसिन को इंजेक्ट करने से पहले वापस पुल करके देखोगे कि वहां पर ब्लड तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ब्लड आ रहा होगा दैट मीन्स आपकी नीडल ब्लड वेसल में इंजर कर गई है, ठीक है, इंजेक्ट कर गई है। अगर ब्लड वेसल में गया होगा तो वहां पर ब्लड आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अगर ब्लड नहीं आता है, एयर है, तो आप मेडिकेशन दे दोगे, ठीक है। बट अगर ब्लड आ रहा है दैट मीन्स उसमें ब्लड वेसल पर आपकी नीडल गई है, तो वहां से आप सिंपली निकाल लो और वहां पे थोड़ी देर प्रेस करके रखो ताकि वहां पर वो ब्लीडिंग ना करे, स्टॉप हो जाए। उसके बाद आप साइड फिर से चेक करो, आपको सही जगह पर देना है, ओके। देन इस तरह से आप एक्सीडेंटल इंट्रावास्कुलर इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हो। देन ड्रग को जो आप यू ऑलरेडी स्टडीड द कैलकुलेशन ऑफ दिस डोजेज ऑफ द ड्रग्स, तो वो आप एक्यूरेटली करो, ठीक है। देन हमेशा IV या इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन देने से पहले एयर को रिमूव करना है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी सिरिंज के अंदर जरा भी एयर ना हो, एयर बबल कुछ ना हो। टैप करोगे ऊपर में, ठीक है, मेक श्योर कि सारी एयर निकल जाए, पुल डाउन, प्रेस करो, दैट ऑल दोज थिंग्स आई विल टीच यू नाइसली। देन इस तरह से आपको मेक श्योर करना है कि आपकी सिरिंज के अंदर कोई भी एयर ना हो जब आप IV देने के लिए जा रहे हो, ठीक है। सो उससे एयर एम्बोलिज्म नहीं कॉज करोगे। देन जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हो तो सही तरह से सेलेक्ट करना है, बी श्योर अबाउट इट, ताकि आप कोई भी नर्व इंजरी कॉज ना करो। सो दिस इज अबाउट दिस प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग रिजल्ट्स इन द इकोनॉमी ऑफ टाइम, मटेरियल एंड कंफर्ट। सो जब भी आप ये सारा मेडिकेशन का प्रोसीजर प्लान आउट कर रहे हो तो हर चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपके पास सारी चीज़ें अरेंज हो जानी चाहिए जब आप मेडिसिन लेने जा रहे हो। ये नहीं आप बार बार भाग करके जा रहे हो, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए आप सारे आर्टिकल्स पहले इकट्ठा करो, तब लेकर के जाओ, मेडिकेशन प्रिपेयर करो, और मेडिकेशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके अंदर सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। एंड पेशेंट भी कंफर्टेबल होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। देन नर्स भी, आप भी कॉन्फिडेंट होता है या नहीं, पेशेंट के बारे में आपको पता है या नहीं पता है, ऑल दोस थिंग्स। एंड यू शुड बी श्योर कि आप कोई भी मेडिकेशन एरर ना कॉज करो।
एंड पेशेंट को भी प्रिपेयर करना है, फिजिकली भी मेंटली भी। फिजिकली कैसे, पेशेंट को बैठाना है या लेटाना है या पोजीशन देनी है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। मेंटली कैसे, उनको एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या आप प्रोसीजर करने जा रहे हो, और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगे तो उनको, पेशेंट को आप मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। Go for the procedure. So these are the principles of this administration of medication. You have to learn these principles, and उसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जनरल इंस्ट्रक्शंस और नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हमारे क्लाइंट प्रिपरेशन आ जाएगा, प्रोसीजर आएगा, अलग अलग साइट्स को कैसे लोकेट करना है वो सब हम सीखेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू।